Hello students, I'm Ajaypal sir from Vivekananda Senior Secondary School, Bani. Now we start the next topic, saprotropes. You might have seen packet of mushrooms sold in vegetable market. आपने देखा होगा कि मशरूम को होते हुए कि मशरूम बिकते हैं मार्केट के अंदर वेजिटेबल के रूप में. You may have also seen fluffy umbrella like patches growing on rotting wood during the rainy season. और आपने umbrella like patch भी ग्रो होते हुए देखे होंगे. रोटिंग मतलब जो गली सड़ी ज़मीन होती है जहाँ पे आप कचरा फेंकते हो वहाँ पर रेनी सीजन के दौरान. Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get nutrition. कैसे वो न्यूट्रिशन लेते हैं और कैसे वो सर्वाइव करते हैं, आज हम वो देखते हैं. Bujo wants to know these organisms acquire nutrients. They do not have mouth like animal do. They are not like green plant as they lack chlorophyll. Cannot make food by photosynthesis. ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, इसलिए मरी हुई चीज़ों से भोजन लेते हैं. Take a piece of bread and moisten it with the water. Leave it in a most warm place for 2 to 3 days or until fluffy patches appear on them. These patches may be white, green, brown or of any other color. Observe the patches under a microscope or magnifying glass. Okay, इन patches को microscope और magnifying glass से देखें. Write down your observation in your notebook. Most probably you see cotton like thread spread on the piece of the bread. अब देखते हो कि कॉटन लाइक थ्रेड जो होते हैं वो ब्रेड के पीस पे आ जाते हैं. These organisms are called the fungi. इनको फंगस या फंजाई बोलते हैं. They are the different mode of nutrition. They secrete digestive juice on the dead and decaying matter and convert it into a solution. ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं जो भी decaying matter होता है उनको खा जाते हैं और एक सोल्यूशन में तैयार कर देते हैं, फिर उस सोल्यूशन को दी ऑब्जॉर्व करते हैं. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन द सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन. इसको सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं. प्लांट विच यूज सैप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड द सैप्रोट्रोप्स. ओके, वो प्लांट जो सैप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अप्लाई करते हैं उनको सैप्रोट्रोप्स बोलते हैं. फंजाई ऑल्सो ग्रो इन पिकल्स, leather clothes and other articles that are left in hot and humid weather for some time. Okay, और बोला है कि फंजाई ऐसी जगह पे भी उगती है जहाँ पे अचार वगैरह को उल्ली वगैरह लगती है ना, तो वो उसको फंजाई बोलते हैं. Paheli is keen to know whether her beautiful shoes which she wore on special occasion were spoiled by fungus during the rainy season. They want to know how the fungi appear suddenly during the rainy season. Rainy season में ही क्यों ज़्यादा fungus grow होता. Buju say once his grandfather told him that his wheat field was spoiled by fungus. He want to know if fungus caused disease also. Paheli told him that many fungus like yeast and mushrooms are useful, but some fungus cause disease in plant and animal and human. Some fungus are also used in medicine. During the rainy season, they spoil many things. Ask your parents about the menace of the fungi in your house. क्या 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 नुकसान पहुंचाता है फंगस आपके घर में. The fungal spores are generally present in air. When they land on the wet and warm things, they germinate and grow. Okay, तो जो फंगल स्पोर होता है जनरली आपको पता है हवा के अंदर प्रेजेंट होता है और जब भी ये नमी वाली जगह पर गिरता है तो वहाँ पे ये जर्मिनेट हो जाता है. Now can you figure out how we can protect our things from getting spoiled? तो हम कैसे हम अपनी things को बचा सकते हैं. Some organisms like live together and share shelter and nutrients. These are called the symbiotic relationship. आपको पता है कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने आप को एक दूसरे के साथ रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगस लिव इन रूट ऑफ ट्रीज. द ट्रीज प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू फंगस एंड इन रिटर्न रिसीव हेल्प फॉर्म टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल. तो ट्री उसको न्यूट्रिशन दे रहा है, फंगस उस ट्री को न्यूट्रिशन देता है. दिस एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रीज, और ये एसोसिएशन उन पेड़ों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. इन ऑर्गेनिज्म का लीचन एक chlorophyll containing partner which is alga and fungus live together. लीचन के अंदर alga और fungus साथ रहते हैं. The fungus provide shelter, water and mineral to alga. In return, alga provide food which prepare for synthesis. Okay, तो alga return
उसको फूड देता है। तो इस तरीके से आप ये कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। इसके अंदर हमने मेनली क्या डिस्कशन किया है, ओके इसके अंदर हमने ये देखा कि कैसे जो सैप्रोट्रोप्स होते हैं वो अपना भोजन लेते हैं, कैसे वो डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। वो क्या करते हैं, डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक एंजाइम, एक केमिकल छोड़ देते हैं और उस केमिकल से वो डेड एंड डीकेइंग सब्सटेंस वो एक सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फिर उस सॉल्यूशन को भी अब्सॉर्ब करते रहते हैं। ये हमने किया, ओके इसको सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं और जो ये करते हैं दैट आर द सैप्रोट्रोप्स होते हैं, ओके। फिर हमने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात की। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर दो ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे के साथ रहकर शेल्टर शेयर करते हैं, न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं फूड को लेने के लिए। तो इसके अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आती है। लीचन इसका परफेक्ट एग्जांपल है जिसके अंदर एल्गा और फंगस एक साथ रहते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा जो हमने आज डिस्कशन किया है, ओके। तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।